سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 35 سال ہوتی ہے۔ اس وقت یہ حالت ہو گیا کہ مکے میں غالباً بہت زیادہ قحط سازی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیا کچھ مدد کرنا ہے چچا کو، تو ایسا کریں گے کہ ان کے اولادوں میں سے کسی اولاد کو آپ لے لو، کسی ایک اولاد کو میں لے لیتا ہوں۔ تو اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ اور ایک واقعہ آیا تھا، وہ یہ کہ بہت زیادہ بارش ہوئی، وہ 4 بڑے قبیلے مل کر منہدم کرنا چاہے، یعنی کعبۃ اللہ کے دیواروں کو گرا کر پھر سے بننے کے لیے جو بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ڈالے تھے، اس سے چھوٹا کعبہ بننا پڑا۔ عتیق میں جا کر بھی نماز پڑھنا گویا کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اور شرف ملتا ہے۔ تو وہ وقت آ گیا کہ سنگ اسود کو لگانے کا وقت آ گیا، اور کچھ قبیلے والے قسم بھی کھا لیے کہ جان چلے گی تو چلے جائے گی، مگر ہم ہی حاصل کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھ رہے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ یہ بات سنتے ہی سب میں خوشی پھیل گئی، کیونکہ سب کو وہ شرف مل گیا کہ سنگ اسود کو اٹھا کر لگانے کا شرف مل گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر غور کریں تو اب دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان میں تب کتنا درد رہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی مجبور ہوتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرنے آتے تھے، بلکہ اس کے بجائے کرنا کیا، حضور نے کیا سکھایا؟ سرکار نے یہ سکھایا کہ تم اپنے خاندان کا خیال رکھو۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ بدلتے چلے گئی، اور آپ زیادہ تر اکیلے اپن محسوس، اکیلا رہنا چاہنے لگے، جسے خلوت کہتے ہیں۔ جبل نور کی طرف گئے، اور وہاں ایک غار تھا جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ اس غار ہرا میں آپ اپنی زندگی بسر کرنے لگے، یعنی آپ وہیں جاتے تھے، وہیں سارا دن گزارتے تھے، کبھی کبھی رات دن بھی گزارتے تھے۔ تو بالکل 40 سال کی جب عمر ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر یہ کہا کہ اقرا۔ بشریت کے تقاضے سے ایک قسم کی وحشت طاری ہو گئی، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ اور اس کا اگر ترجمہ صحیح کیا جائے تو یہاں یہ بات ہے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تمہیں پڑھانے والا ہوں۔ حقیقی معنی اگر امی کا لیا جائے عربی کا تو ماں کے ہوتے، امی جا کر ہم اردو میں امی پکارنا پڑے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں امی بتایا گیا، تو وہ بھی علم کے جڑ ہے۔ پھر بھی آپ کو دبوچا گیا، یعنی معانقہ کیا گیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ کرو، تو آپ نے کمبل اڑائے اور پوچھا گیا کہ حال کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس طرح ایک عجیب سا شخص آیا تھا، اور آ کر اس طرح واقعہ۔ تو حضور نے بشریت کے تقاضے سے کا بھی پورا اہتمام کیا ہے۔ آپ نورانیت، الحمدللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اپنی جگہ ہے، پھر اپنی جگہ انسانیت ہے۔ وہ انسانیت اس لیے ہے کہ ہم کو درس دے۔ بات سمجھ میں؟ نبی سے چپ کے نسبت نہیں لگی۔ اہل بیت میں پہلے شامل کون ہوتے ہیں؟ امہات المسلمین، امہات المومنین شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو آپ کی پریشانی پوچھ کر ان کی پریشانی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دور کرتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں جن کا نام ورقہ بن نوفل ہے، ان کے پاس چلیں۔ تو آپ نے کہا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایسا ہی ہوا کہ فرشتہ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا کام ہی یہ تھا کہ نبیوں تک وہی پہنچاتے رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معانقہ کرے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے سینے سے نور ان کے اندر پہنچا. نہیں، اصل تو یہاں یہ ہے کہ ان کے اندر کا نور ان کو پہنچنے لگا، بلکہ آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ لے کر چلے گئے. آپ کے رب کے نام سے ذرا پڑھ لیجیے، آپ کا رب بھیجا ہوا ہے. یہ میں پڑھو نہیں بول رہا ہوں. الٹی باتیں کر لے کر اپنے ایمان کو کمزور نہ کر لیں. حضرت جبرائیل معلم نہیں، اللہ معلم ہے. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ گزشتہ صحبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کا موقع تھا. میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو آپ کی شادی ہوئی وہ واقعہ بیان کیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 35 سال ہوگی. اس وقت یہ حالت ہو گیا کہ مکے میں غالباً بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی تھی اور بہت پریشانی آ گئی تھی. تو لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تھے. ایسے حالت میں جناب ابو طالب کا گھرانہ ذرا بڑا گھرانہ تھا. وہ ان کے عیال زیادہ تھے، یعنی ان کے اولاد زیادہ تھے. ان کو اپنا گھر چلانے میں دشواری ہوتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے. تو ایسے موقع میں بہت پریشانی جو اپنے چچا کے گھر میں دیکھے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیا کچھ مدد کرنا ہے چچا کو. تو اور ایک چچا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان سے رابطہ کیا اور ان سے بات کی کہ دیکھو حالات بہت پریشان ہیں. مکہ معظمہ میں ایک قحط سالی کی طرح پھیلا ہوا ہے. تو ہم جناب ابو طالب چچا کی کچھ نہ کچھ امداد کرنا ہے. تو ایسا کریں گے کہ ان کے اولادوں میں سے کسی اولاد کو آپ لے لو، کسی ایک اولاد کو میں لے لیتا ہوں. اس طرح ان کے اوپر سے بوجھ کم ہوگا، اترے گا. تو مدد ہماری اس طرح ہو سکتی ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی مان لیے کہ ہاں صحیح ہے یہ بات، کہ چلے ہم جا کر بات کریں. اب سیدھا آئے، آ کر حضرت ابو طالب کے پاس ملے اور ان کے پاس مل کر یہ بات رکھی. تو آپ نے بھی منظور کر لیا. منظور کر کر کہے کہ عقیل کو چھوڑ کر باقی اولاد میں سے جسے چاہے آپ لے لیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جعفر نامی لڑکے کو لے لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی کفالت میں لے لیا. ایک زمانہ تھا حضور کی کفالت حضرت جناب ابو طالب کر رہے تھے
उसके बाद एक ज़माना ऐसा आ गया, हज़रत अबू तालिब के औलादों की कफालत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने लगे। बात समझ में आई? तो इस तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में कौन आए? हज़रत अली करमल्लाहु वजहू आए, और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कफालत में जाफ़र, हज़रत जाफ़र आए। तो इस तरह उनका बोझ कुछ कम हुआ और अल्लाह ताला करम फरमाने लगा। ये वाक़या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यानी 30 पर 5 साल की उम्र में ये वाक़या आया। और एक वाक़या आया था, वो ये कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और जिसकी वजह से, बारिश की वजह से हुआ ये कि काबतुल्लाह के दीवार बिल्कुल क्रैक पड़ गए थे, काबतुल्लाह की दीवार में क्रैक आ गए थे, और लोगों ने, अरब के लोगों ने, यानी कुरैश खानदान वगैरह के लोगों ने ये चाहा कि वहाँ के कि इसको मुनहदिम कर कर फिर से क्या करें, खाना काबा की तामीर करें। जब ये वक्त आया तो 4 बड़े कबीले थे काबतुल्लाह में, वो 4 बड़े कबीले मिलकर मुनहदिम करना चाहे, यानी काबतुल्लाह के दीवारों को गिराकर फिर से बनने के लिए चाहे। तो हुआ ये कि तोड़ने के लिए, यानी काबतुल्लाह की दीवार को तोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सबके दिल में एक किस्म का खौफ पैदा हुआ था। उस वक्त वलीद बिन मुगय्यरा ने काबतुल्लाह की दीवारों को तोड़ने का काम शुरू किया और वो मुनहदिम कर दिया गया। और हालात बिल्कुल तंगदस्ती के हालात थे। तो उस हालत में जब वो काबतुल्लाह को बनना चाहा, तो जो बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में डाले थे, उससे छोटा काबा बनना पड़ा। तो वही जो जगह आज भी जो हतीम कहलाती है ना, वो असल में पूरी जगह काबतुल्लाह की जगह है। वो चूंकि वो उस वक़्त में कमी पैसे की रहने की वजह से वो हुआ ये कि काबतुल्लाह को थोड़ा सा छोटा कर कर बनना पड़ा। तो बचत जो जगह थी उसे हतीम का नाम दिया गया है, आज भी वो हतीम के नाम से है। वहाँ इसी हतीम में जाकर भी नमाज पढ़ना गोया के काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब और शर्फ मिलता है। बात समझ में? तो इस तरह काबतुल्लाह को बनना शुरू किए। वो 4 कबीले 4 तरफ होकर, 4 दीवार है ना, 4 तरफ होकर बनना शुरू कर दिए। तो उसी ज़माने में वो जो साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन की वजह से दरिया में, यानी इस अरबियन सी में एक जहाज आकर अटक गया था और वो टूट गया था। तो जब मालूम हुआ अरब वालों को, वहाँ पहुँचे अरब वाले और वहाँ कुछ कीमत देकर उसके लकड़ियाँ वगैरह खरीद कर लाए, जिससे काबतुल्लाह की छत बनाई गई। तो जब ये बंधन शुरू हुआ, बंधन चल रहा था, तो वो वक्त आ गया कि संगे असवद जो है ना, वो संगे असवद को लगाने का वक्त आ गया। तो अब ये चारों के चारों लगाने और उसका शर्फ हासिल करने के लिए तू मैं का झगड़ा शुरू हो गया। कोई कहा कि हम लगाएंगे, एक कबीले वाला, फिर दूसरे कबीले वाले कहे कि हम लगाएंगे, फिर तीसरे कबीले वाले कहे कि हम लगाएंगे, चौथे, इस तरह बात बढ़ती चले गई। 4 दिन काम भी रुक गया और यहाँ तक हालत पैदा हो गई कि जंग का माहौल पैदा हो गया और कुछ कबीले वाले कसम भी खा लिए कि जान चलेगी तो चले जाएगी, मगर हम ही हासिल करेंगे संगे असवद को लगाने के लिए। बात समझ में?
तो ऐसे मूवमेंट में फिर लोगों ने मिलकर ये तय किया कि एक काम करें कि जो शख्स पहले दाखिल होता है काबतुल्लाह में उसको हकम बनाएंगे, आर्बिट्रेटर हकम बनाएंगे। वो जो फैसला करेगा उस फैसले पर हम काम करेंगे। तो हाँ, सब तय कर लिए, सब मान लिए इस बात को कि देखेंगे कि कौन आते हैं सबसे पहले काबतुल्लाह में, और उनको हकम बनाकर उनकी बात हम मान लेंगे, वो जो भी कहेंगे मान लेंगे, ये खून खराबे से रुक जाएंगे। देखते ही देखते क्या देख रहे हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं। सब ने कहा ये तो अमीन है, ये तो सादिक हैं, और उन सब ने पुकारा अल अमीन या सादिक पुकारा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की तरफ तवज्जो की और उनको वाक़िया सुनाया गया कि इसी ये हाल है, अब जो आप फैसला करेंगे वो फैसले पर हम कायम रह जाएंगे। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगाई और चादर को बिछा दिया। बिछाकर आपने अपने दस्ते मुबारक से संगे अस्वद को उठाकर चादर में रख दिया और रखकर कहे कि तुम में कौन लीडर है, वो 4 लीडर 4 कोना पकड़ ले, पकड़कर वो पत्थर को ऊपर उठाएं। ये बात सुनते ही सब में खुशी फैल गई, क्योंकि सबको वो शर्फ मिल गया कि संगे अस्वद को उठाकर लगाने का शर्फ मिल गया। इसी तरह चारों ने 4 कोने चादर के पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता उठाने लगे। जब मकाम आ गया लगाने की जगह, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस संगे अस्वद को उठाकर लगा दिए। तो इस तरह मामला खत्म हो गया, फैसला बड़ा अच्छा हो गया। चारों को भी ये शर्फ मिल गया कि हमने संगे अस्वद लगाई, हमने लगाया, इस तरह हो गया और मामला बिल्कुल ठंडा हो गया। ये तरीका था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला करने का, ऐलान नबूवत के आगे। ये भी सरकार का जमाना 35 साल का था। बात समझ में? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर गौर करें तो अब देखिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खानदान का कितना दर्द रहता था। तो हमें भी चाहिए कि इस वाक़ये से हमें भी ये दर्स हासिल करना चाहिए कि हम भी अपने खानदान का दर्द रखना चाहिए। बात समझ में? गरीबों की मदद करना और यतीमों पर हाथ रखना, ये सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। और जहां कहीं भी कोई भी मजबूर होता था, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद करने आगे पहुंच जाते थे। बात समझ में आई? तो इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जनाब अबू तालिब के घराने को मदद कर हमें ये तालीम दी, ये दर्स दी कि तुम भी अपने खानदान का ख्याल रखो। खानदान में अगर कोई भी तकलीफ ज़दा हो जाता है तो उसकी तकलीफ को सुनकर खुश ना हो जाओ। और आज होता क्या, हमारा काम, कोई भाई तकलीफ में पड़ गया तो एक भाई हंसने लगता और उसकी बुराइयां बयान करने लगता। हाँ देखो, उन्हें वो वक्त में ऐसा किया जिसकी वजह से उसे अल्लाह का ये अजाब आ गया, वो अजाब आ गया। मकबल के उसके बजाय करना क्या, हुजूर ने क्या सिखाया? सरकार ने ये सिखाया कि तुम अपने खानदान का ख्याल रखो और अपने खानदान के अफराद में किसी को अगर तकलीफ है तो उसकी मदद किया करो। बात समझ में आई? उसी तरह तुम्हारे जो खीशो अकारिब हैं उनकी भी तुम मदद किया करो। बात समझ में आई? इस तरह
मदद करने का जज्बा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। तो हमको भी चाहिए कि हम भी आपस में देखें और हमारे हाथ से जितना हो सकता है उनकी मदद करें और ज़िंदगी बहाल करें। बात समझ में आई? और दूसरी तरफ इंसाफ हो तो इंसाफ भी सही तरीके से किया जाए। अब देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे अंदाज से इंसाफ कर दिया। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कुछ बदलते चले गई और आप ज्यादातर अकेला रहना चाहने लगे, जिसे खलवत कहते हैं। लोगों से दूर रहना, लोगों से हटकर रहना और अकेले रहना और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहना, ये तबीयत पैदा हो गई आपकी। तो आपने जबले नूर की तरफ गए और वहाँ एक गार था जिसे गारे हिरा कहते हैं। उस गारे हिरा में आप अपनी जिंदगी बसर करने लगे, यानी आप वहीं जाते थे, वहीं सारा दिन गुजारते थे, कभी कभी रात दिन भी गुजारते थे और इबादतें में मशगूल रहते थे। फिर अपने घर को आते थे, जब भी घर की ज़रूरत होती थी घर को आते थे, फिर घर में जो भी था देखते थे। फिर उसके बाद कुछ तोशा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको दे देते थे, कुछ सत्तू और पानी वगैरह दे देते थे। वो लेकर फिर गारे हिरा पहुंच जाते थे। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। तो बिल्कुल 40 साल की जब उम्र हुई तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आने लगे। कई किस्म के सच्चे ख्वाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आकर ये कहा कि इक़रा, पढ़िए। क्या कहा? इक़रा, पढ़िए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किस्म की वहशत तारी हो गई। बशरियत का तकाजा रहा, बशरियत के तकाजे से एक किस्म की वहशत तारी हो गई और आपने कहा मा अना बिकारी। क्या कहा? मा अना बिकारी, यानी मैं पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। अब इसका तर्जुमा मैं पढ़ नहीं सकता भी लिखने वाले लिखे हैं, मुझे पढ़ना नहीं आता लिखने वाले भी लिखे हैं। बात समझ में आई? और इसका अगर तर्जुमा सही किया जाए तो यहाँ ये बात है मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, यानी मैं पढ़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब ये भी है कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। बात समझ में आई? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिबोच लिया, मुआनखा किया, इतना दबाया, बहुत जोर से दिबोचा, फिर छोड़कर कहा कि इक़रा, पढ़िए। तो फिर आपने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। तो मालूम हुआ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई मकतब में गए, ना किसी स्कूल गए, कुछ भी नहीं। आप पढ़ने पढ़ाने के लिए कहीं भी गए नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी में कोई मकतब नहीं आपके लिए। बात समझ में आई? तो अब बात यह हुई कि आप उम्मी हैं। उम्मी का माना लिया जाता है अनपढ़। हकीकी माना अगर उम्मी का लिया जाए अरबी का,
तो माँ के होते हैं। हम भी हमारे अम्मी जान बोलते ना, अम्मी जान, अम्मी अम्मी पुकारते, ये असल में उम्मी उम्मी है। बात समझ में आती? उम्मी जाकर हम उर्दू में अम्मी अम्मी पुकारने लगे। अब अम्मी किसको पुकारते? माँ को पुकारते। माँ का मतलब क्या है? जड़। बात समझ में? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी को भी यहाँ उम्मी बताया गया, तो वो भी इल्म के जड़ हैं, ये नहीं कि अनपढ़ हैं। बात समझ में आई? बल्कि इल्म के जड़ हैं, इल्म के असल हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? इल्म के असल हैं। इसके मतलब से उम्मी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना के ज़ाहिरी माने के एतबार से है। ज़ाहिरी माने के एतबार से अनपढ़ लिया जाता है, और अरबी दान अगर रहे तो समझ सकते हैं। अरबी में उसकी एक क्या होता है, रूट वर्ड्स भी होते हैं। उस एतबार से अगर उस लफ्ज का देखा जाए तो उम्मी, उम्मी का मतलब असल। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मी कहा जाता है, वो उम्मी इसलिए कहा जाता है कि वो इल्म के असल हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना बिकारी, यानी मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो हजरत जिब्राइल समझे नहीं और मुआनखा किया, फिर भी कहा इकरा, फिर आपने यही जवाब दिया मा अना बिकारी, फिर भी आपने मुआनका किया, फिर इतना दबाया, फिर भी आपको कहा गया इकरा, तो फिर भी आपने मा अना बिकारी कहा, फिर भी आपको दिबोचा गया, यानी मुआनका किया गया। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया इकरा। किस तरह कहा गया? पूरा लफ्ज बयान किया गया, इकरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। इकरा रब्बिकल लज़ी, है ना वो। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे, अब ज़ाहिरी एतबार से, बशरियत के एतबार से आपके अंदर कपकपी पैदा हो गई, आप बहुत परेशान भी हो गए थे। बात समझ में आई? और वहां से निकले और निकल कर सीधा घर आए, और घर आकर हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ज़मलूनी, यानी कंबल उड़ाओ, कंबल उड़ाओ। तो आपने कंबल उड़ाए और पूछा गया कि हाल क्या है। तो आपने कहा कि इस तरह एक अजीब सा शख्स आया था और आकर इस तरह वाक़िया। तो आपने कहा, किसने कहा? हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप गम न खाएं, आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप अल्लाह ताला ने आपको हर खतरे से बचाएगा, आप मत डरिए। आपको अल्लाह ताला ने कभी जलील और रुस्वा भी नहीं करेगा। ये सब जो कुछ वाक़ियात हैं, ये बशरियत का तकाज़ा है। तो हुजूर ने बशरियत के तकाज़े से का भी पूरा एहतमाम किया। हैं आप नूरानियत, उसके साथ साथ आप बशरियत भी तो हैं आप, तो बशरियत का भी पूरा तकाज़ा रखते हुए ये हाल पैदा हुआ। और आपने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको हिम्मत दी। बात समझ में आई? ये भी एक दर्स है, एक हमारे लिए एक दर्स है, यानी एक लेसन है कि जब भी शौहर परेशान हाल में आए, उसको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि बीवी को चाहिए कि उसे हिम्मत दें, उसकी तारीफ करें, उसे हिम्मत दिलाएं। मगर आज क्या हो रहा है? परेशान हाल में आता है और भी घर में घुसते ही
इन्हों भी एक उसके बाबा परेशानी उठा को डाल डालते सर को, क्या जी ये हालत में, अभी क्या रमजान का महीना आ गया, 10 रोजे, कितने रोजे, 9 क्या 9 रोजे हो गए, अभी तक कपड़े का क्या इंतजाम किए नहीं, बच्चे को कैसा कपड़े लेको देना, ये हंगामा हो जाता। उन्हें बाहर से परेशान होकर निकल कर आ रहा है, उन्हें तो जो भी कर रहा है वो तुम्हारे लिए तो कर रहा है ना, उन्हें क्या खुद के लिए कर रहा है, उन्हें शादी किया हुआ है, उसे भी मालूम है मेरे बच्चे ही, मेरे बीवी है, मेरी अम्मा है, मेरे सब कुछ ही जो भी हैं आई, उन्हें परेशानी में जाकर फिर को परेशान हाल होकर आता है। आया तो घर में उसे उसके हिम्मत देकर, उसे इज्जत देकर, उसे अच्छे तरीके से देखकर, उसके बाद जो भी बोलना है कि तुम्हें सनत से बोलेंगे तो परेशानी कम हो जाएगी, उसके बजाय आज वही बेचारा परेशानी के साथ घर में आता है, आते ही उलट इनका शुरू हो जाता, आओ राम डूम चेहरा बना लेते ही, क्या इन्हों चेहरा बना को इना क्या किस्सा है कर को पूछे तो हाँ कितने दिन हो गए रमजान शुरू हो को, अब तक क्या करे, तुम्हें कुछ भी करे नहीं, इतने 2 साल कोरोना में चले गया, अब भी लेना है, कब जाना है, ये वो डाम डूम धड़ाक भड़ाक, अब बेचारा क्या करेगा, परेशानी वो परेशानी। अब होता क्या, लड़ाई का माहौल पैदा हो जाता, अब एक दूसरे गाली गलोच दे लेते, धूम कर लेते, फिर उन्हें घर से निकल को बाहर भागी जाए, क्या करेगा बेचारा, बोलो अब घर में रहे तो और भी परेशानी होगी, भाग जाता। यहाँ देखो ये भी क्यों, ये मरहला क्यों हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कर क्यों बताया, ये अपना कर क्यों बताया, ये इंसानियत, आप इंसान हैं तो बेशक आप पूरे मुकम्मल इंसान हैं, बात समझ में। ये नहीं कि देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ही नहीं कि उन्होंने जिब्राइल थे, उनको देखो कुछ भी मालूम नहीं, उनके बीवी उनको बोलते हैं कि दे तुम्हें क्या भी नहीं, क्या की बोलते लोग, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मालूम नहीं था, अब मालूम हुआ क्या तुम ना, ऐलान नबूवत भी के बाद ही सरकार को मालूम हुआ कि मैं नबी हूँ, हुजूर को ये भी मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो आप क्यों घबरे हो जाते, आप क्यों परेशान हो जाते, हाँ कई बातें बोलने लगते। ये बातें आगे वो लोगों की बातें हैं जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं समझते, नहीं पहचानते। अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि हमको अच्छे वालिदैन भी अता फरमाया और फिर हमको अच्छा रहबर भी अता फरमाया, अच्छा शायख भी अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये समझ अता फरमाई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत अपनी जगह है, फिर अपनी जगह इंसानियत है। वो इंसानियत इसलिए है कि हमको दर्स दे, बात समझ में। और याद रखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल के कुल मॉडल हैं हमारे लिए, बात समझ में, हमारे लिए एक मॉडल है। आपकी जिंदगी हमारी जिंदगी का एक गुजारने का एक तरीका है, उनकी इताअत और इत्तबा करना है, बात समझ में। तो अब मर्दों के लिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा मुकम्मल होगी। औरतों के लिए तो याद रखो, औरतों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुतहरात यानी उनकी खानदान, आपके खानदान में जो अज़वाजे मुतहरात हैं वो मॉडल हैं औरतों के लिए। चुपके निस्बत नहीं लगी नबी से, समझ में आया, नबी से चुपके निस्बत नहीं लगी। अहले बैत में पहले शामिल कौन होते हैं? उम्महातुल मुस्लिमीन, उम्महातुल मोमिनीन शामिल होते हैं, बात समझ में। अहले बैत में पहले शामिल होने वाले कौन हैं? उम्महातुल मोमिनीन। ये उम्महातुल मोमिनीन और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद, और औलाद में हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लिया जाता। ये मुकम्मल मॉडल हो जाती हैं औरतों के लिए, बात समझ में आई। तो यहाँ भी देखिए औरतों के लिए हजरत खदीजतुल कुबरा मॉडल बनना है। तो बेशक जब सरकार परेशान हाल में दाखिल हुए घर में, तो आपको आपकी परेशानी पूछकर
اور उनकी परेशानी को हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दूर करती हैं। किस तरह दूर करती हैं? आपकी तारीफ करती हैं। ये फरमाते हैं कि आप परेशान ना हो, आप गम ना खाएं, अल्लाह ताला आपको कभी किसी खतरे पर नहीं डालेगा, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप अच्छाई ही करते आए, आप सादिक रहे, आप हर एक से सिले रहमी करने वाले रहे, आप गरीबों की मदद करने वाले रहे, यतीमों का दुख सहने वाले रहे, आपको अल्लाह ताला आपको छोड़ेगा नहीं। ये है हुब्ब, ये है मोहब्बत रसूल अल्लाह। बात समझ में आई? मोहब्बत रसूल अल्लाह का इजहार कर रहे हैं कि हुजूर की गुलामी और हुजूर की मोहब्बत क्या है। हुजूर की मोहब्बत यह है कि सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सरकार की हकीकतें बयान कर रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकतों को बयान कर रहे हैं। बात समझ में आई? ये जो मामला हुआ, ये मामले को अगर ऐसा भी लिया जाए तो भी ले सकते हैं कि सरकार को मालूम नहीं था, सरकार परेशान हो गए, जानते भी नहीं थे कि उन्होंने जिब्राइल थे वगैरह 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 वगैरह, जो भी बोलना बोल सकते। मगर हकीकत देखने तो ऐसा नहीं है। सरकार एक मॉडल थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, बशरियत का तकाजा जाहिर करना था तो बशरियत का तकाजा जाहिर करते हैं। और फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनको किस तरह तसल्ली देते हैं, उसी तरह हमको वो दर्द सीख कर हम भी अपने घर वाले जब परेशान हो जाते हैं तो हम भी अपने घर वालों को तसल्ली देना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए। बात समझ में? अरे भाई क्यों आप परेशान हो रही? इतने साल क्या नहीं दिलाए? क्या दिलाए? सोचना ये साल अगर कुछ तकलीफें आ गई ही तो हम सहेंगे, ये ऐसा बोलना चाहिए औरतों को। उसके बजाय वो कैसा ये कैसा, मैं कपड़े नहीं है, कौन से कपड़े पहनाएंगे, अब कैसा जाएंगे, मैं बाजूगर वाले को क्या मुंह दिखाऊं? तुमको क्यों भाई परेशानी बाजूगर वाले को मुंह दिखाने की? बात समझ में? इस तरह हंगामा कर देना ये इंसानियत नहीं है, बल्कि इंसानियत का तकाजा ये है कि जब शौहर अपने घर आए, किसी परेशान हाल में आए, तो उसकी परेशानी को दूर किया जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने और तसल्ली देने के लिए, क्योंकि हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अभी सरकार को पूरे तरीके से नहीं जानते हैं, नहीं? जो देख रहे हैं समझ रहे हैं, इतना ही समझ रहे हैं, अभी पूरा जो हुजूर के हकायक हैं उन तमाम हकायक से अभी वाकिफ नहीं हुए हैं। तो आपने कहा और भी तसल्ली देने के लिए हुजूर को आपने कहा कि मेरे एक चचाजाद भाई हैं जिनका नाम वर्खा बिन नौफिल है, उनके पास चलें, वो एक राहिब हैं और उन्होंने आपको और भी तसल्ली देंगे, आपके बारे में बताएंगे। क्योंकि वो जो थे वर्खा बिन नौफिल, वो अरब के शिर्क में मुब्तला नहीं थे, बल्कि मुवाहिद थे और वो ईसाई थे और तौरात और इंजील का दर्स लिए हुए थे। और ये जो मुशरिकीन मक्का थे इनसे बिल्कुल अलहदा थे। बात समझ में आई? तो उनके पास लेकर गए, तो लेकर जाने के बाद उन्होंने देखकर पूछा कि बोलो बेटा क्या मामला है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुनाया तो आपने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी ऐसा ही हुआ। बात समझ में आई? तो ये कोई जिन या शैतान या कुछ नहीं है, बल्कि ये फरिश्ता आपको अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रर किया है। तो इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सुकून देने की पूरी कोशिश हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। बाद चलते चलते वही नाजिल होने लगी। इंशाअल्लाह मैं कल
और डिटेल से बोलने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, तो उम्मी की हकीकत यह है कि आप असल हैं। बात समझ में, याद रखें ये चीज़ों को। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही, माना बिकारी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ, बल्कि ये मतलब है कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। बात समझ में आई। उसके बाद हज़रत जिब्राइल भी पहचाने नहीं थे, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम ही ये था कि नबियों तक वही पहुंचाते रहें। तो ये सिलसिला तो उनका जारी रहा। कमोबेश 1,24,000 अनबिया को वो आप वही देने का काम करते रहे, सिवाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाकी सब अनबिया को आप वही देने का काम करते रहे। तो वैसा ही समझकर आकर आपने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब सुलूक किया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो मुआनका करे, लपट कर दिबोचे, तो उससे उनको मालूम हो गया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये नबियों का नबी है। ये कौन है? ये नबियों का नबी है, ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। इनके साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, इनके साथ ऐसा सुलूक करना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए लफ्ज इकरा, इकरा पढ़ो, जब आपने इकरा कहा, सरकार ने माना बिखारी कह दिया। फिर आपने इकरा कहा, फिर सरकार ने माना बिखारी कह दिया। बात समझ में? फिर मुआनखा करने के बाद, मुआनखा करने के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस से नूर इनके सीने में पहुंच रहा था। लोग ये कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सीने से नूर इनके अंदर पहुंचा, नहीं, असल तो यहाँ ये है कि इनके अंदर का नूर उनको पहुंचने लगा, उन्हों पहचानने लगे। हाँ, ये वो ये ये नबी तो है, मगर नॉर्मल जैसा दूसरे नबी थे वैसा नबी नहीं है, बल्कि ये नबी तो आला नबी है, ये नबियों का नबी है, ये आखिरुज़्ज़मा है। बात समझ में आई? तो इस तरह नूर इधर से उधर मुंतकिल हुआ। बात समझ में आई? तो उसके बाद आपने इकरा नहीं कहा, बल्कि आपने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पढ़ लेकर चले गए। बात समझ में आई? पढ़ लेकर चले गए। ये नहीं कहा कि पढ़ो, पहले आके कहा पढ़ो, आपने कहा नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ता। फिर दूसरे बार कहा पढ़ो, फिर आपने कहा मैं नहीं पढ़ता। फिर तीसरे बार कहा पढ़ो, आपने कहा नहीं मैं पढ़ नहीं सकता। तो बाद में आपने पढ़ो नहीं कहा, इकरा बिस्मी, आपके रब के नाम से जरा पढ़ लीजिए, आपका रब भेजा हुआ है, ये मैं पढ़ो नहीं बोल रहा हूं, ये उसके तरफ से पढ़ो बोल रहा है। सुभान अल्लाह। ये पूरा पढ़ने लगे, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। जब पूरा पढ़ने लगे तो अब यहां इल्तिजा हो गई। बात समझ में? अब यहां हुक्म नहीं रहा, इकरा इकरा पर जब रुके तो गोया कि ये हुक्म कर रहे थे। जब बात पूरी बताए, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, जब ये पढ़ने लगे तो सरकार ने भी पढ़ने लगे, क्योंकि अब वो बताए कि देखो मैं आपको हुक्म करने वाला नहीं हूं, ये अल्लाह ताला के तरफ से हुक्म है, अल्लाह ताला ने ऐसा ही भेजा है, आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए अल्लाह ने भेजा। इकरा उधर की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। जब ये होते ही सरकार ने पढ़ने लगे। बात समझ में आई? ये बात समझें, उल्टी बातें कर लेकर अपने ईमान को कमजोर ना कर लें।
बल्कि ये बात समझें, बात समझ में ये समझें कि जब तक हुक्म इस तरह होता रहा आप डिनाई करते रहे, जब आप उसके बाद आप तीसरे बार जब मुआनखा करने के बाद आपने इकरा नहीं कहा बल्कि आपने इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जब जूं ही पढ़ना शुरू कर लिया, आप खुद पढ़ना शुरू कर लिए, तो आप मालूम ये बताना चाहे हजरत जिब्राइल नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, मैं मेरे तरफ से इकरा नहीं, ये मैं नहीं, मैं पढ़ो नहीं कह रहा हूं, ये अब ऐसा ही उतरा है, ऐसे ही बात आई है, वहां से इकरा की बात आई है। अब असल में मुअल्लिम तो अल्लाह है आपका, अल्लाह ताला तो कह सकता है शागिर्द को पढ़ो, बात समझ में आई? शागिर्द को उस्ताद कह सकता है ना, पढ़ो बोल सकता है, क्योंकि वो पढ़ाया हुआ है, जो पढ़ाया हुआ है वो तो आराम से बोल सकता पढ़ो, ये पढ़े, बात समझ में? दूसरा आकर बोलना ये तो गलत हो गया। तो दूसरा जब बीच में ही आकर बोलने लगा तो माना भी खारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, तुम्हें क्या जी बोल रही, तो मुझे पढ़ो, बोल को मैं पढ़ने वाला नहीं, ये बता रहे थे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया पूरे तरीके से, जब मुआनखा करने के बाद ये इल्म आ गया आपको कि ये दूसरे लोगों के जैसा नहीं है, ये कोई और है, ये खैरुल बशर है, ये है बशर मगर खैरुल बशर है, ये नूरे मुजस्सम है, ये आखिरुल ज़मा है, इनके साथ का मामला ही अलग है। तो आपने अब इकरा करके रुकाया नहीं, बल्कि ये कहने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, आपके रब के नाम से आप पढ़िए, यानी आपका रब ने कहा आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, तो आप पढ़ने लग गए। हजरत जिब्राइल मुअल्लिम नहीं, अल्लाह मुअल्लिम है, अल्लाह ताला मुअल्लिम है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, रहमान है जो आपको कुरान का इल्म अता फरमाया। बात समझ में आई? अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान है जो आपको कुरान का इल्म अता फरमाया। और एक हदीस है, हदीस जिब्राइल जिसका नाम है, वहां तो आप आकर सवाल कर जानते हैं, सीखते हैं, आप आते हैं हुजूर के दरबार में, आते हैं, दो जानो अदब तय करते हैं और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते हैं इस्लाम क्या है। जब इस्लाम बताया जाता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं, सदक़ता या रसूल अल्लाह, सच कहे आप। फिर ईमान बताए तो बोलते हैं सदक़ता। जब एहसान का सवाल हुआ तो सदक़ता नहीं कहते। तो हुजूर ने उसकी तफसील बयान की कि इस्लाम जानते थे, सदक़ता कहा, ईमान जानते थे, सदक़ता कहा, एहसान नहीं जानते थे, मुझसे सीखे। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? तो अब एक जगह उस्ताद, एक जगह शागिर्द, ऐसा नहीं हो सकता। उस्ताद है तो वो उस्ताद ही है, शागिर्द नहीं हो सकता। शागिर्द है तो वो शागिर्द ही है, उस्ताद नहीं हो सकता। समझ में आई? तो हजरत जिब्राइल एक जगह उस्ताद बोल को, एक जगह शागिर्द बोल, नहीं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम शागिर्द ही रहे। और अल्लाह ताला खुद खुलकर फरमा रहा है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया। अगर जिब्राइल सिखाने वाले हो जाते तो अल्लाह ताला ये बात क्यों कहता? बात समझ में आई? तो मालूम हुआ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दूसरे के पास पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आप पढ़े भी नहीं। बात समझ में आई? वरना पढ़ाने वाला हो जाता, अब वहां एक अदब आ जाता, पढ़ाने वाला अफजल है ना, हाँ, शायख अफजल होता है ना मुरीदीन के लिए, उस्ताद अफजल होता है ना शागिर्द के लिए, हैं? अब हुजूर को पढ़ाने वाले हो जाते, अब हुजूर से अफजल हो जाते ना, हुजूर से अफजल नहीं ना, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। इसलिए सरकार पढ़े ही नहीं। क्यों नहीं पढ़े? अल्लाह पढ़ाने वाला, वो तो पढ़े हुए आए। बात समझ में आया? अल्लाह पढ़ाने वाला, अल्लाह पढ़ाया, अल्लाह आपका मुअल्लिम रहा। तो बात को समझे। इस बात यहां तक मैं आज खत्म करता हूं, क्योंकि मेरा वक्त तो गुजर गया, 2 मिनट आगे बढ़ गए हैं।